अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि न्यू ग्लोबल फाइनेंसिंग पैकेज समिट पेरिस में जारी है। नाज़रीन, ये जो 2 रोज़ा सरबराही इजलास है, इसमें 50 से ज़ायद ममालिक के सरबराहान और दुनिया भर से 300 के करीब आलमी इदारे और सिविल सोसाइटी के मुख्तलिफ नुमाइंदे शरीक हैं। इस कॉन्फ्रेंस का जो आगाज़ है उस पर फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का कहना था कि आलमी कर्जे का जो निज़ाम है उसमें तब्दीलियों की ज़रूरत है, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि कम आमदनी वाले ममालिक को मौसमियाती तब्दीली और गुर्बत से लड़ने के लिए मुश्किलात का सामना न करना पड़े। नाज़रीन, जब हम बात करते हैं तरक्की पजीर मुल्कों की, तो उनका आधा बजट सूद की अदायगी में चला जाता है, क्योंकि दुनिया के 3,05,000 अरब डॉलर कर्ज पर 5% शरह के हिसाब से सालाना सूद 15,250 अरब रुपए बनता है, जो आलमी सालाना पैदावार का तकरीबन 20% है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल समझते हैं कि 2030 के मकासद हासिल करने हैं तो आलमी मालियाती निज़ाम को दुरुस्त करना होगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने भी यहाँ अपने खिताब में पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह किया। वज़ीर आज़म का कहना यह था कि जब तक आलमी सतह पर माशी इंसाफ नहीं होगा, दुनिया ख़तरे से दो चार रहेगी। मौसमियाती तब्दीलियों के बायस गुज़श्ता साल पाकिस्तान को तबाह कौन सैलाब का सामना करना पड़ा। सेक्रेटरी जनरल ने सैलाबज़दा इलाकों में तबाही के मनाजिर खुद अपनी आंखों से देखे थे। पाकिस्तानी अवाम ने सैलाब जैसी बहुत बड़ी आफत का बहुत ज़्यादा बहादुरी से मुकाबला किया था। देखना ये होगा कि जब जनूबी ममालिक मुसीबत में हों तो शिमाली ममालिक कैसे महफूज रह सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हमें वसाइल की मुनसिफाना तकसीम के हवाले से पॉलिसी मुरतब करना होगी। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान का मौक़िफ़ किस तरह से पेश किया, पहले आपको ये सुनवाते हैं। Minister of State, Prime Minister, Excellencies, ladies and gentlemen, it's a great honor to be here this afternoon to participate in this very important discussion. And at the outset, I'd like to appreciate leadership of President Macron to organize this wonderful summit to discuss a very important subject which relates to suffering humanity more so and global community generally. Last year we had the most devastating floods as a result of climate change in Pakistan, which almost completely changed our lifestyle. 33 million people were affected. Millions of acres of standing crop was washed away. Mercifully, it could have been huge number, but because of very proactive actions by all stakeholders, 1,700 people died, including children, and 500,000 animals were drowned. 2 million houses were either completely demolished or partially damaged. Now, we had to cough out hundreds of millions of dollars from our own pocket with our scarce resources and provide paltry sum of money to these flood affectees all over the country. Of course, we are very grateful to our friendly countries across the globe for their valuable and timely contribution. But largely, the cash amounts had to be generated from our own resources. And when we approached international institutions, they said, well, we can give you loans and take loans and have, I said, should we have further burden on our already hugely burdened, our stretched resources? And the answer was that if you go for debt restructuring or something else, that will not be good for the country. Now, ladies and gentlemen, we know that there are tensions around the globe and billions of dollars are being spent over there.
to defend those countries. That's fine. I mean, I have no problem with that at all. But when it comes to the question of saving suffering humanity, I can tell you, my friend, very dear friend, Secretary General of the United Nations was with me, and I took him to the hinterland of Pakistan, where floods had absolutely drowned cities after cities. And in those camps, thousands of women were giving birth to children day in and day out. And far-flung areas where you had to provide medicine, food, water. And for months, we had to have makeshift education programs over there. What I'm saying is, this is not fair. That on one hand, you are ready to provide everything for defense of a country or countries. That is perfectly okay. But when it comes to the question of saving thousands and thousands of people from dying, then you have to borrow money at a very high cost. Then you have to go and beg and borrow and further deteriorate your already very precarious financial situation. Ladies and gentlemen, I'm not here to moan and cry and shed tears. I'm here to tell you that I'm a human being. I belong to a country where my people are very brave. They have faced problems and crises in the past and faced courageously. We shall come out of this crisis, inshallah, as winners. But I want to share my experience with you. You are policymakers sitting here. You are great politicians. You are great technocrats. What I'm saying is that unless and until we come out with a fair, equitable, and judicious formula of distribution of resources, financial resources, this world will never live in peace, will never live in happiness. If North is progressing, we are very happy because we look forward to having their experience and implementing their experience in our country for progress and providing jobs, providing livelihood, industry, agriculture, promote it. But this must also be remembered that if South is in trouble, how can North be in peace? It's like one body. If one of the limb of the body is in trouble, is painful, you can't say the rest of the body is in peace. So, what I'm saying is, let's, here in Paris, we've gathered here today. I heard her speech this morning. It was a very, very emotional speech, and it touched hearts. And here he has spoken very well, and others, all of you, my brother, President of Uganda, and other speakers will speak. Let me say, without any fear of contradiction, unless we come forward in generous terms to provide an opportunity and a system and a mechanism which will satisfy the most vulnerable at bare minimum and which will create harmony in terms of economic justice and fairness, this world shall always be in trouble. And my concluding remark would be, it's never too late. Let's stand up and say no to injustice. Thank you very much. नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ न्यू ग्लोबल फाइनेंशियल पैकेज समिट में शिरकत के लिए फ्रांस में मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर से भी यहां पर मुलाकात की है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस, फ्रांसीसी सदर एमेनुअल मैक्रोन, अमरीकी सदर के नुमाइंदा जॉन केरी और सऊदी वली-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान समेत दीगर आलमी रहनुमाओं से उनकी मुलाकातें हुई हैं। इन मुलाकातों में दो तरफा बाहमी उमूर के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। IMF की जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनसे गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि हुकूमत पाकिस्तान IMF से तय करदा तमाम शराइत को मुकम्मल करने के लिए पुरअज़्म है। उम्मीद है कि पाकिस्तान को किस्त की अदायगी जल्द कर दी जाएगी।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जिन आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें की, उन्हें नए आलमी मालियाती मुआहदे के तहत कर्ज की दलदल में डूबे तरक्की पजीर ममालिक की मदद के बारे में पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह किया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आलमी रहनुमाओं को मौसमियाती तब्दीलियों से पाकिस्तान में होने वाली तबाही से भी आगाह किया और दो तरफ़ा ताउन को बढ़ाने के लिए भी काफ़ी सरगर्म दिखाई दिए। वज़ीर आज़म के मुख्तलिफ रहनुमाओं से होने वाली मुलाकातों के हवाले से हमारे पास एक रिपोर्ट है, आपको दिखाते हैं। पेरिस में न्यू ग्लोबल फाइनेंशियल पैक्ट समिट के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं से मुलाकात की। आलमी मालियाती फंड की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिवा की मुलाकात में पाकिस्तान और IMF के दरमियान जारी प्रोग्राम्स और ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने गुज़िश्ता माह 27 मई को टेलीफोनिक बातचीत का जिक्र करते हुए क्रिस्टालिना को पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने बताया कि पाकिस्तान ने IMF के तौसीफ फंड फैसिलिटी के नए जायजे पर तमाम मतलूबा इक़दाम उठा लिए हैं। हुकूमत पाकिस्तान IMF से तय करदा तमाम शराइत को मुकम्मल करने के लिए पुरज़्म है। वज़ीर-ए-आज़म ने तवक्को ज़ाहिर की कि IMF के एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के तहत मुख्तस किए गए फंड्स जल्द जारी कर दिए जाएंगे। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर ने वज़ीर-ए-आज़म को अपने दायरे के नुक्ते नज़र से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरस के माबैन अहम मुलाकात हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का पुरतबाक खैर मकदम किया और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अंतोनियो गुतरस से गुफ्तगू में कहा कि आपको पाकिस्तान का मौसम तस्वर करते हैं, सैलाब के मौके पर आपकी मदद भूल नहीं सकते। मौसमियाती तब्दीलियों से पाकिस्तान में होने वाली तबाही के आप ऐनी शाहिद हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने सैलाब मुतासिरीन की बहाली के इक़दामात के बारे में अंतोनियो गुतरस को आगाह किया और कहा कि सैलाब मुतासिरीन की बहाली और उनकी दोबारा आबादकारी हमारी अव्वलीन तरजीह है और रहेगी। इस मौका पर अंतोनियो गुतरस ने सैलाब मुतासिरीन की बहाली के लिए वज़ीर-ए-आज़म और उनकी हुकूमत के जज्बे को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने फ्रांसीसी सदर मैक्रोन से मुलाकात की, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा दिलचस्पी के उमूर पर राब्ते बरकरार रखने पर इत्तेफाक किया। वज़ीर-ए-आज़म ने फ्रांसीसी सदर से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आपने तरक्की पजीर ममालिक के साथ मालियाती इंसाफ पर मबनी निज़ाम की तरफ जुरतमंदाना कदम उठाया। नए आलमी मालियाती मुआहदे के तहत कर्ज की दलदल में डूबे तरक्की पजीर ममालिक की मदद वक्त की ज़रूरत है ताकि वहाँ के अवाम को रिलीफ मिल सके। मौसमियाती तब्दीलियों की तबाहकुन असरात ने मसाइल ज़दा तरक्की पजीर ममालिक को मुश्किलात से दो चार कर दिया है। फ्रांसीसी सदर ने सरबराही इजलास में शिरकत करने पर वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की भी मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी की उमूर पर तबादला और दो तरफा ताउन के फ़रोग़ के लिए इश्तराक के अमल को मज़ीद बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम के लिए खैर सगाली के जज्बात का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मिस्र के सदर अब्दुल फतेह अस्सीसी से मुलाकात में COP27 के होने वाले इजलास में लॉस एंड डैमेज फंड को अहम पेशरफ्त करार दिया। दोनों कायदीन ने दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ और उन्हें मज़ीद वसअत देने के अज़्म का अयादा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की माहौलियात के लिए अमरीकी सदर के नुमाइंदा ख़ुसूसी और साबिक़ वज़ीर ख़ारिजा जॉन केरी से भी मुलाकात हुई। जॉन केरी ने मौसमियाती तब्दीलियों के मसले से तरक्की पजीर ममालिक के लिए ख़तरात में इजाफे पर इत्तेफाक किया। दोनों रहनुमाओं ने मुश्तरका कोशिशों के लिए राब्ते बरकरार रखने और मुशावरत से आगे बढ़ने के अज़्म का अयादा किया। नाज़रीन, इस समिट के हवाले से और इस समिट ही के दौरान जब यहाँ शिरकत कर रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जो उनकी साइड लाइन मीटिंग्स हुई हैं, उस हवाले से रिपोर्ट भी आपने देखी। इस सारे मामले पर इस समिट पे बात करते हैं। यूनुस खान साहब से, सीनियर सहाफ़ी हैं, पेरिस से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम यूनुस साहब। वालेकुम सलाम आसमा। यूनुस साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकाल रहे हैं मेरे प्रोग्राम के लिए। अच्छा यूनुस साहब, पहले तो ज़रा हमें इस समिट के बारे में बताइएगा ना कि ये समिट असल में है क्या, क्यों इस समिट का एहतमाम किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, अब तक जो खिताब हुए हैं उसमें क्या बातें की गई हैं, और फिर ये जो बार बार यकसा अहदाफ के हुसूल के लिए कहा जा रहा है कि ये समिट हो रहा है, ये यकसा अहदाफ असल में हैं क्या? देखिए, ये ग्लोबल वार्मिंग के नतीजे में जो पूरी दुनिया को दरपेश खतरात हैं, उससे निपटने के लिए ये ग्लोबल समिट का इनेकाद किया गया है। और इस वक्त ये इसलिए भी इंतहाई अहम है कि ये किसी एक मुल्क या किसी एक खित्ते का मसला नहीं है, ये पूरे दुनिया का ये मसला है।
अगर हमने देखा है कि पिछले साल हमारे मुल्क में सैलाब आया, जिससे हमारे बहुत से लोग बेघर हुए, लाखों लोग बेघर हुए, और एक माशी तौर पर भी जो है वो जो है हम लोगों को मसाइल का सामना करना जी। पड़ा। यही चीज जब हम यूरोप में देखें तो माजी में 5-10 साल अगर पीछे चले जाएं तो यहाँ पे हम ये पंखों का या एयर कंडीशन का रिवाज नहीं था, लेकिन आज के दौर में जब यूक्रेन की जंग हो रही है और वहां पर तवानाई का बुहरान है यूरोप में, और ऊपर से गर्मी भी 38-40 तक हो रही है, तो यहाँ पे इनको ये महसूस हो रहा है कि जो ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से, जो माहौलियात की तब्दीली के हवाले से इस वक्त जो इकदामात उठाना है ये बहुत अहम है। पेरिस इसलिए भी इंतहाई अहम है कि यहाँ पे सबसे पहले जो माहौलियाती आलूदगी का एक मुआहदा हुआ था, पेरिस पैक्ट के नाम से वो जाना जाता है, उस वक्त अमेरिका ने भी उस मायदे में शिरकत की थी, लेकिन उस हवाले से जो अमली इकदामात अमेरिका ने जो उनकी कोई इक्तिसादी पॉलिसियां थी उस हवाले से उसको वो जो थे उन्होंने उस अहदाफ को तकमील तक उसमें उनका साथ नहीं दिया। लेकिन अब दुनिया की सफारतकारी के वजह से, जोर की वजह से अमेरिका भी और दूसरे दीगर ममालिक भी, आज हमने देखा कि 50 से ज्यादा ममालिक यहाँ पे मौजूद थे और सब यही कह रहे थे कि आज जो हम गर्मी देख रहे हैं, जो सैलाब की तबाकारियां देख रहे हैं, जो खुशहाली देख रहे हैं, ये अभी कोई इंतहा नहीं है, ये सब इब्तिदा है, और आगे जाके ये इंतहाई तबाहकुन शक्ल इख्तियार कर लेगी। और इसके लिए जरूरी है कि पूरी दुनिया के जो ममालिक है, ताकतें हैं, कुव्वतें हैं, वो एक नुक्ते पे आ जाए। लेकिन इससे पहले भी यूनुस हमने देखा था ना कि सब लोग लगा ऐसा था कि जी एक पेज पर आ गए हैं, सब लोग लगा ऐसा था, खास तौर पर जब एंटोनियो गुतेरेस सारी सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर खुद अपनी निगाहों से, अपनी आंखों से देख कर गए थे। फिर उन्होंने जाके दुनिया के जो बड़े ममालिक हैं उनसे कहा कि आप आइए, पाकिस्तान जैसे जो दीगर ममालिक हैं और ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान में मैं नुकसान देख कर आया हूँ उसकी मदद कीजिए। तब ये लगा कि जी शायद बहुत बड़ा एक फ़ंड जो है, फ़ंड तो कायम किया गया था, लेकिन उसके अंदर जो पैसे आने थे, जो रकूम आनी थी, वो उस तरह से आई नहीं, इमदाद का ऐलान उस तरह से किया नहीं गया। तो आपको लगता है कि जो आज हमारे वज़ीर आज़म ने इस समिट के अंदर जो बातें कही हैं, जिस तरह से पाकिस्तान की सिचुएशन बयान की है, उसके बाद हम देखेंगे कि कुछ ना कुछ किया जाएगा ख़ासतौर पर पाकिस्तान के लिए? देखिए, उस हवाले से जो अक़वाम मुत्तहिदा में भी, जिनेवा में भी जो है एक कॉन्फ्रेंस कराई गई थी, जिसमें मुख्तलिफ दुनिया के ममालिक ने इमदाद का वादा भी किया था और इमदाद दी भी थी। लेकिन उस इमदाद में जो एक चीज थी वो ये थी कि वो जो पैसा होगा वो डायरेक्ट हुकूमत पाकिस्तान को नहीं दिया जाएगा, बल्कि मुख्तलिफ ममालिक जो प्रोजेक्ट है वो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट में लगाएंगे। और हम देख रहे हैं कि सिंध में बहुत सी जगहों पर इन ममालिक ने अपने प्रोजेक्ट तकमील दी है, लेकिन जितनी इमदाद दी जानी चाहिए थी वो इमदाद जो जिसकी तवक्का थी वो नहीं दी गई। और अब चूंकि यूरोप में भी हम देख रहे हैं कि एनर्जी क्राइसिस है, यूक्रेन जंग से भी ये लोग मुतासर है, और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे गर्मी की शिद्दत में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। इसके साथ साथ सिर्फ ये गर्मी या सैलाब या खुशहाली ही मसला नहीं है, बल्कि नित नई जो बीमारियां हैं वो भी जन्म ले रही है, और उसकी बुनियादी वजह यही है। लेकिन जो दुनिया की जो बड़ी सनती जो ताकतें हैं वो इस तमाम मसले की जिम्मेदार है। पाकिस्तान या जो हमारा हिस्सा है वो इसका जिम्मेदार नहीं है कि उनके जो फजले होते हैं या जो सनती जो आलूदगी होती है, कीमियाई आलूदगी होती है, ये वो ममालिक ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं जहाँ की सनतें बड़ी होती है। हमारे जो पाकिस्तान है उसका इसमें इतना कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन मुतासरा ममालिक में हम इस वक्त हम सरपरस्त है, और इसी वजह से आज मियां शहबाज शरीफ ने भी कहा है कि हमारी जो माशी हालात है वो हमें इजाजत नहीं देती कि हम इस जंग से तनहा लड़ सकें। है। और जो माशी हालात की बात हो रही है तो यूनुस मैं यहाँ चाहूँगी कि जो IMF की MD से मुलाकात हुई है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जो साइडलाइन एक मुलाकात हुई है, ये पाकिस्तान में ज़ाहिर है इसको बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई और हम सबकी नज़रें इसके ऊपर लगी हुई थी, और ख़ास तौर पर इसमें जो गुफ्तगू हुई है, जिस माहौल में गुफ्तगू हुई है, उसके बारे में हम आपसे जानना चाह रहे हैं। वज़ीर आज़म ने यहाँ खुलकर बताया है कि जी ज़ाहिर है कि हमें इस वक्त मदद की ज़रूरत है, और अगर ये किस्त मिल जाती है IMF से पाकिस्तान को तो पाकिस्तान के बहुत सारे माशी मसाइल जो हैं वो ख़त्म हो सकते हैं, और इसके लिए जो भी IMF की शराइत थी वो पूरी कर ली गई हैं, तमाम की तमाम शराइत जो हैं अब वो पूरी कर रहा है पाकिस्तान। लेकिन फिर भी उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि वहाँ से ये किस्त जो है इसमें टाल मटोल से काम लिया जा रहा है। आपको लगता है इस मीटिंग के बाद कोई अच्छी खबर आएगी इस हवाले से?
देखिए, ये जो मीटिंग थी ये ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से थी, माहौलियाती आलूदगी के हवाले से थी, जी लेकिन जी। इसमें हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने यहाँ पे न सिर्फ ये कि मालियाती फंड्स जो आईएमएफ है उनके वफ़ा से मुलाकात की, बल्कि अमेरिकन सदर के नुमाइंदा और जी। दूसरी साबिक वज़ीर ख़ारजा जॉन केरी से भी मुलाकात की, फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन से भी की, सऊदी अरब के वज़ीर-ए-आज़म और वली-ए-अहद शहज़ादा मोहम्मद सलमान से भी की और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से भी मुलाकात की। ठीक। जबकि मिस्र के सदर अब्दुल फातिह से भी इनकी मुलाकातें हुई हैं। जी। जो आप आईएमएफ की बात कर रहे हैं, आईएमएफ के सदर से जो उनकी मुलाकात हुई थी वो इतनी तवील नहीं थी, लेकिन मियां शहबाज शरीफ ने उनको यही बात की है कि आपकी जितनी भी शराइत हैं उसको हमने पूरा किया है और इसके हवाले से हमारे जो अभी माशी मसाइल चल रहे हैं इस हवाले से आईएमएफ को सोचना चाहिए, जिस पर उन्होंने कहा है कि जब वो जाएंगे वापस तो वो अपने वफद क्योंकि वो अथॉरिटी नहीं है वो वफद, उन्होंने कहा कि हम अपने हेडक्वार्टर में बात करेंगे इसके हवाले से, लेकिन उन्होंने साथ ये भी कहा है कि जो आपकी साबका हुकूमत थी जो उनकी वादा खिलाफी वर्जी थी उसकी वजह से मसाइल सामने आ रहे हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया यूनुस खान। मसाइल तो हैं लेकिन ज़ाहिर है उन मसाइल को हल करके आगे बढ़ना होगा और तभी पाकिस्तान के माशी मसाइल जो हैं वो किसी हद तक सुलझ पाएंगे। यही कोशिश की जा रही है वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से, जो वो फ्रांस में मौजूद हैं और इसी दौरे के हवाले से आप आगाह करें। तो यूनुस खान पेरिस से, बहुत शुक्रिया यूनुस आपके वक्त के लिए। आप चूँकि कवर कर रहे हैं इस सारे इवेंट को तो हम वक्तन फ़वक्तन आपसे इस हवाले से मालूमात लेते रहेंगे और आपका तज्ज़िया भी मुख्तलिफ हवालों से जानते रहेंगे। यूनुस खान साहब जी हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर सहाफ़ी हैं, पेरिस में हैं और इस समिट को कवर कर रहे हैं। उनसे हम इस बारे में मज़ीद मालूमात ले रहे थे। नाज़रीन, जब से फ़लस्तीनी सदर मसला फ़लस्तीन पर चीन की हिमायत और सालसी की पेशकश लेकर वापस पहुंचे हैं, तब से इजरायली फोर्सेस ने शदीद हमलों का सिलसिला शुरू कर दिया है, जिनमें अब तक 10 फ़लस्तीनी शहीद और 94 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं। नाज़रीन, इजरायली फ़ौज ने जिनेन में एक कार पर ड्रोन हमला किया जिसमें 4 फ़लस्तीनी शहीद और 4 ज़ख्मी हो गए। इस ताज़ा कार्रवाई में नए आबादकारों ने फ़लस्तीनियों के एक स्कूल को भी नज़र आतिश कर दिया है। जिनेन वो इलाका है जिसे सिहोनी फोर्सेस 22 साल में पहली बार निशाना बना रही हैं। इस इलाके में 2 रोज़ कबल कैंप पर बमबारी की गई थी और इस बमबारी के नतीजे में तलाती आई थी कि 6 फ़लस्तीनी शहीद और 90 ज़ख्मी हो गए थे। अब फ़लस्तीनियों के घरों को बारूद से उड़ाया जा रहा है। इजराइल की जानिब से दोबारा नई बस्तियों के क़याम और उसके तौसीह मंसूबों का ऐलान भी अक़वाम आलम के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। पाकिस्तान, सऊदी अरब और मिस्र समेत कई ममालिक इजरायली हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत कर रहे हैं। सऊदी अरब ने अमन की बहाली के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाने का ऐलान किया है। इस्लामी ताउन तंजीम और खलीज ताउन काउंसिल ने भी इन ज़ालिमाना कार्रवाइयों को अमन की तबाही के मुतरादिफ करार दिया है। नाज़रीन, फ़लस्तीन पर बहुत जुल्म हो चुका। इजरायली फोर्सेस हर रोज़ अपने जबर की नई दास्तानें रकम करती हैं। ज़रूरत अब इस अमर की है कि अक़वाम आलम आगे बढ़े और इस मसले को हल करवाने में किरदार अदा करे। इस मामले पर हमारे साथ एक गेस्ट मौजूद होंगे, उनसे उनका तज्ज़िया जानेंगे, लेकिन इससे पहले इजरायली फोर्सेस से जो ये ताज़ा हमले हैं और जो कुछ मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से कहा जा रहा है, ख़ास तौर पर मसला फ़लस्तीन को हल करने के लिए जिस तरह से चाइना ने एक वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया है, फिर सऊदी अरेबिया ने इस पर बात की है, इस हवाले से हमारे पास एक रिपोर्ट है। पहले आपको वो रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर मेरे साथ मेरे गेस्ट मौजूद होंगे जी आर बलोच साहब, जो कि साबिक सफ़ीर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, उनसे बात करेंगे। इसराइल की जानिब से मासूम और निहत्ते फ़लस्तीनियों पर बिलाजवाज़ हमले और जुल्म जबर की कार्रवाइयों को रोका न जा सका। इसराइली फोर्सेस ने फ़लस्तीन के इलाके उर्दन के शुमाली शहर जेनन में ड्रोन से एक कार पर बमबारी की, जिसके नतीजे में कार में मौजूद 3 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। ड्रोन हमले से कबल सिहोनी फोर्सेस ने फ़लस्तीनियों पर फायरिंग भी की थी। इसराइली आलमी रेडियो के मुताबिक गर्ब उर्दन में 4 यहूदियों की हलाकत के बाद ये जारहाना इकदाम उठाया गया है और इस हवाले से वो तमाम वसाइल बरोकार लाएंगी। गैर मुल्की खबर इदारे के मुताबिक एक तरफ इसराइली फोर्सेज फ़लस्तीनियों को हमलों का निशाना बना रही है तो दूसरी जानिब नई आबादकारों ने गांव के सेकेंडरी स्कूल को आग लगा दी। 2 रोज कबल भी इसराइली फोर्सेस ने 22 साल में पहली बार जेनन कैंप को जमीनी और फिजाई हमलों का निशाना बनाया, जिसमें अब तक 6 फ़लस्तीनी शहीद और 90 से ज़ायद जख्मी हो चुके हैं। सऊदी अरब ने इसराइली जारहियत की मजम्मत की है। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा ने अपने बयान में मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में इसराइली कार्रवाइयों में इजाफे पर तशवीश का इजहार किया है। मुतासरीन के अहले खाना और फ़लस्तीनी हुकूमत के साथ दिली ताज़ियत और ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए भी नेक तमन्नाओं का इजहार किया है।
फलस्तीनी सदर के दौरा चीन और चीनी सदर की जानिब से आज़ाद फलस्तीनी रियासत के क़याम के लिए सालसी की पेशकश के बाद ये पहला बदतरीन हमला है। पाकिस्तान ने भी फलस्तीनी भाइयों पर होने वाले हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। मिस्र की वजारत खारजा ने इसराइल की तरफ से फलस्तीनियों पर अस्करी चढ़ाई को अमन की तबाहकारी करार देते हुए कहा है कि इन हमलों से सूरत हाल मजीद खराब हुई है और इलाकाई कशीदगी कम करने की कोशिशों को नुकसान पहुंचा है। सऊदी अरब ने गुज़िश्ता माह भी यरूशलेम में मस्जिद अक्सा पर हमले की मजम्मत की थी और फलस्तीनी अवाम के लिए अपने मजबूत मौक़िफ़ को दोहराया था। सऊदी अरब के अलावा इस्लामी ताउन तंजीम और खलीज ताउन कौंसिल ने भी आज़ाद फलस्तीनी रियासत के फौरी क़याम की हिमायत का अयादा किया है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने फरवरी में म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में मशरिक़ वस्ता के ममालिक का जियो स्ट्रेटेजिक किरदार पर पैनल बहस के दौरान फलस्तीनी मसले पर मुमलिकत के मौक़िफ़ के बारे बात की। सऊदी शहजादा फैसल बिन फरहान ने कहा था कि हमारी अखलाकी जिम्मेदारी है कि हम अमन का रास्ता तलाश करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर हमें अमन का रास्ता न मिला तो जो मसाइब फ़लस्तीन और इसराइल दोनों में आएंगे वो नाकाबिले बयान हैं। लिहाजा हम वो करेंगे जो हम कर सकते हैं। हम इस रास्ते को तलाश करने के लिए जिससे भी हो सके राब्ते करेंगे। खबरसां इदारे एसोसिएटेड प्रेस ने रिपोर्ट किया कि इसराइली फौजी दस्तों ने शुमाली मगरबी किनारे में पनाह गुज़ीनों के कैंप पर धावा बोला था, जिसके नतीजे में 15 साल लड़के समेत 5 फलस्तीनी जामे शहादत नोश कर गए हैं। खैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मकबूजा मगरबी किनारे के अलावा जैनन कैंप पर इसराइली फोर्सेज ने अचानक धावा बोल दिया था, हेलीकॉप्टर से मिसाइल फायर किए, गोलियां बरसाईं और जहरीली गैस का भी इस्तेमाल किया गया। इसराइली फोर्सेज ने कई फलस्तीनियों के घरों को धमाके से उड़ा दिया था। शाहीदीन के मुताबिक इसराइली फौज ने जेनन में इब्न सीना अस्पताल से सिर्फ चंद मीटर के फासले पर फलस्तीनियों पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें 3 अफराद जख्मी हुए। एक फलस्तीनी सहाफ़ी हाजिम नासिर को, जिसने वाज़े तौर पर प्रेस के निशान वाली जैकेट पहनी हुई थी, गोली मार कर शदीद जख्मी कर दिया गया। साल के आगाज से अब तक 166 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक मशरकी अल-कुदस और मगरबी किनारे में इसराइली फोर्सेज फलस्तीनियों के 575 घर मसमार कर चुकी है। ताहम 1 साल से ज़्यादा अरसा के दौरान किए गए हमलों में ये ताज़ा तरीन वाक़या था, जिसे मगरबी किनारे में तबाही का सबब बनने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। रिपोर्ट आपने देखी। अब इस सारे मामले पे बात कर लेते हैं GR बलोच साहब से, जो कि साबिक सफ़ीर रहे हैं पाकिस्तान की जानिब से वियतनाम में, सीरिया में, कुवैत में, और साथ ही साथ ये बड़ी गहरी निगाह रखते हैं ख़ास तौर पर मिडल ईस्ट ममालिक के जो मामलात हैं। तो इस सारे मामले पर आज हमने दावत दी है GR बलोच साहब को, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बलोच साहब। वालेकुम अस्सलाम। बलोच साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अच्छा बलोच साहब, देख हम ये रहे हैं कि जब से चीन ने फ़लस्तीनियों के हुकूक की हिमायत की है, मसला फ़लस्तीन के हल के लिए ख़ुद को बतौर सालिस पेश किया है, हत्ता कि ये तक कह दिया है कि आज़ाद फ़लस्तीन रियासत जो है अब वही मसले का वाहिद हल है, तब से हम देख रहे हैं कि इजराइल ने फ़लस्तीन पर हमले तेज़ कर दिए हैं, बेगुनाह फ़लस्तीनियों को शहीद किया जा रहा है, लेकिन ये सिलसिला अब बढ़ा दिया गया है। आप क्या समझते हैं कि चीन की हिमायत मिलने पर इजराइल जो है वो हवास बाख्ता हो चुका है, इसलिए हमले तेज़ हुए? चीन की हमेशा PLO को और आप अपने मरहूम अराफात को, यासिर अराफात को, और जनरली पैलेस्टीन कॉज की हमेशा वो सपोर्ट करता रहा है चाइना। लेकिन अभी जो हम देख रहे थे जब मोहम्मद अब्बास जो है वहाँ गए चाइना में, और जिस तरह से उन्होंने एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप, जो कि एक चाइना के टर्मिनोलॉजी के हिसाब से ये एक अपग्रेडेशन ऑफ द रिलेशनशिप है, तो यकीनी तौर पे ये कोई कंफर्टेबल डेवलपमेंट नहीं है इजराइल के लिए। लेकिन पैलेस्टीनियन को मारना, निहत्ते शहरियों को मारना, उन पे जुल्म ढाना, और जुल्म पे ऐसे के जुल्म लफ्ज ही नाकाफी है, जो बर्बरियत है उसको मुश्किल है अल्फाज में बयान किया जा सके। यकीनी तौर पे वो फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ गई है, और फिर खास तौर पे अब जो स्ट्रैटेजी है नेतन्याहू की, जो कि अभी इज कंप्लीटली सपोर्टेड बाय द ऑर्थोडॉक्स, अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स ज्यूज, जो कभी भी पावर में नहीं रहे, जो कि नफी करते हैं किसी भी किस्म की पॉलिटिकल एंटिटी ऑफ पैलेस्टीन या उनकी एग्जिस्टेंस। उनका तो ईमान यह है कि तमाम लोगों को, उनकी फिलॉसफी ये है पॉलिटिकल, कि तमाम पैलेस्टीनियंस को इस सरजमीन से निकाल दिया जाए, और इजराइल की सरजमीन जो है वो जॉर्डन रिवर तक चली जाती है, बल्कि जॉर्डन से भी आगे चली जाती है, और
گولان ہائٹ جو ابھی بھی ان کے قبضے میں ہے اس سے بھی بڑھ کے وہ چاہتے ہیں کہ ہونا چاہیے. تو آپ کو لگتا ہے بلوچ صاحب کہ چونکہ یہ ان کے ایک ایمان کا حصہ ہے یا ان کا ماننا یہ ہے تو وہ اس کے لیے کسی بھی حد تک جائیں گے, اور پھر ہم یہ سمجھ لیں, ہم یہ سوچ لیں کہ وہ کتنے ہی مظالم کیوں نہ بڑھا دیں, دنیا اور عالمی برادری جب میں بات کریں تو وہ اسی طرح سے خاموش رہے گی, خاص طور پر جو پاور میں ہیں جو ممالک وہ خاموش بیٹھے رہیں گے. امریکہ کو نکال کے میں بات کروں کیونکہ امریکہ تو ظاہر ہے کہ اس کا ساتھ ہی دے رہا ہے, تو پھر ہم یہ سمجھ لیں کہ چاہے سعودیہ اس پہ بات کر رہا ہو, چاہے چائنا اس پہ بات کر رہا ہو, ہونے والا کچھ نہیں ہے, ہوگا وہی جو وہ پلان کر چکے ہیں. نہیں, ایسا نہیں ہے. کنڈمنیشن جو ہے اور جو ڈپلومیٹک کنڈمنیشن ہوتی ہے وہ اس کا اثر ہوتا ہے, لیکن یہ بات بڑی واضح ہے کہ جب سے ابراہم اکارڈ ہوا ہے اس سے عربوں کی جو حیثیت ہے یا اس کی جو سٹینس ہے اس میں بہت ساری ویکنیس آ گئی کہ ان کے حساب سے انہوں نے عرب ورلڈ کو, دنیا یا مسلم ورلڈ کو ڈیوائیڈ کر دیا ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا دنیا تیار ہے کہ اسرائیل کے خلاف کام کر سکے, اور خاص طرح جس طرح آپ نے کہا جو مغربی دنیا ہے اس میں ہمیں امریکہ کو شامل کرنا پڑے گا, چونکہ مغربی دنیا اکیلی تنہا فلسطینین مسئلے کے حوالے سے کچھ فیصلہ نہیں کرتی جب تک کہ امریکہ ان کو خون نہ دے. لیکن ہمیں پتا ہے کہ جو زیونسٹ ہے, see we have to understand the difference. There's a world Zionist movement and there are genuine Jews. Jews کے رائٹس کی بات ہر انسان کرتا ہے, ہم بھی کرتے ہیں, ٹھیک ہے, if they at all they have a right to exist somewhere that is fine. لیکن بلکہ یہ قائد اعظم کی بہت انٹرسٹنگ اس کی ریسرچ میں بھی کر رہا تھا, انہوں نے جب پیلسٹینین رائٹس کی بات کی تو انہوں نے کہا کہ ہم جوز کی رائٹ یا ان کے بیسک رائٹ ٹو سروائیو اینڈ لیو کے خلاف نہیں ہے, بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں اسرائیل سے کوئی دشمنی نہیں ہے, لیکن ہم پیلسٹینین کی جو رائٹس ہیں اس کی بات کر رہے ہیں. لہٰذا میرے خیال ہے اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دنیا کو یہ باور کرانے کی ضرورت ہے, جس میں عرب ملک اور مسلمان ملکوں کا یہ ہے کہ وہ اپنی اس طاقت کو جو ان کے پاس ڈپلومیٹک ہے, جو اکنامک ہے, پولیٹیکل ہے, جیو اسٹریٹجک ہے, اس کو استعمال کریں اسرائیل. اور آج کل تو بلوچ صاحب یہ ممالک اکٹھے بھی بہت ہو رہے ہیں نا, مشرق وسطیٰ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بہت پرانی دشمنیاں تھیں وہ بھی اب دوستی میں تبدیل ہو رہی ہیں. بہت ساری جس سے معاشی مسائل کا آپ نے کہا, بہت ساری جگہوں پر جہاں یہ ممالک یورپ پر انحصار کر رہے ہوتے تھے, امریکہ پر جہاں بہت ساری چیزوں کے لیے انحصار کر رہے ہوتے تھے, اب یہ لوگ جو ہیں یہ ایک دوسرے پر یعنی مسلم ممالک پر ہی انحصار کر رہے ہوں گے. تو اب آپ کو نہیں لگتا کہ یہ زیادہ آسان ہے کہ لوگ آپس میں متحد ہو جائیں اور اس اتحاد کو فلسطینیوں کو مظالم سے بچانے کے لیے استعمال کر سکیں؟ یہ ہو پائے گا؟ دیکھیے, ایک یہ خوشائند بات تو ضرور ہے کہ مڈل ایسٹ جو ہے وہ مکمل طور پہ ویسٹ کی گرفت سے اور امریکن گرفت سے نکل کے ایک لحاظ سے انڈیپینڈنس کی طرف جا رہا ہے, پولیٹیکل اینڈ جیو اسٹریٹجیکلی اینڈ جیو اکنامکلی. یہ بہت اچھی بات ہے, تو لہٰذا ان کے پاس زیادہ لیوریج ہوگا to speak about the Palestinians. اور یہ کہا ابھی بولا بھی ہے سعودی عرب نے, کافی سارا اسٹرانگلی کہا ہے. تو آنے والے دنوں میں یقینی بات ہے کہ انشاءاللہ جس طرح سے چائنا کا بڑھ رہا ہے اثر و رسوخ, جس طرح سے ایک کمپلیٹ شفٹ آ رہا ہے دنیا کے اندر جیو اسٹریٹجک, تو اسرائیل کو اپنی پالیسیز ریوائز کرنی پڑیں گی. یہ جو ایکسٹریمسٹ ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ اپنے اس فائنل سائیکل سے ہٹ کے نیچے آئے, کیونکہ there is a lobby within Israel also جو کہتے ہیں کہ پیلسٹینینز کو بھی اتنا ہی رائٹ ہے کو ایگزسٹ کرنے کا جتنا کہ اسرائیلیوں کا ہے. بلکہ یہ میں بتا دوں آپ کو کہ اسرائیل کے بذات خود ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ پیلسٹینینز ہیں, لیکن they don't give them rights. وہ ایک اپارٹائڈ کا انہوں نے آئیلینڈ بنایا ہوا ہے. So I think Israel essentially is a very abnormal state. آج کی دنیا میں جو اسٹیٹ سسٹم ہے, جو ریاستی نظام عالمی ہے, اس میں ایک بہت بڑا ڈسٹارشن ہے. اور ہم جو اکیڈمیشین یا اینالسٹ ہیں وہ ہمیشہ اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ this distortion has to be put right. اس کو درست ہونا ہے, 10 سال لگیں, 20 سال لگیں, 50 سال لگیں, لیکن یقینی طور پہ ہونا ہے. جس طرح سے ابھی جو تبدیلیاں آ رہی ہیں بلوچ صاحب, وہ آپ نے بجا فرمایا کہ مسلم ممالک جو ہیں اپنی اس طاقت کو جو اب وہ بڑھا رہے ہیں آپسی اتحاد کے ساتھ, وہ اس مسئلے کو حل کروانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں, چاہے اس میں تھوڑا وقت اور لگ جائے, لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے, ایسا کیا جا سکتا ہے, اور اللہ کرے کہ ایسا ہو رہا ہو, کیونکہ فلسطینی بہت زیادہ مظالم دیکھ رہے ہیں, اور ابھی گزشتہ دنوں میں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مظالم بہت ہی انتہا کو چھو رہے ہیں. لیکن جی بلوچ صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے.
آپ کے تجزیے کے لیے. آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. وقت ہمیشہ کی طرح ہمارے پاس کم ہوتا ہے, ہم آپ سے اتنی ڈیٹیل میں بات نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں, لیکن آپ وقت نکالتے ہیں ہمیشہ. بہت شکریہ سر اس کے لیے. اچھا جی ناظرین, ابھی جی آر بلوچ صاحب بھی بات کر رہے تھے. میں نے بھی ان سے سوال کیا کہ جو مشرق وسطیٰ کے ممالک ہیں وہ اپنے بہت سارے جو اختلافات ہیں ان کو بھلا کر اپنے معاملات صحیح کرتے ہمیں دکھائی دیتے ہیں, لیکن دو ممالک جن کے بیچ بہت کوشش کروائی گئی بہت سارے ممالک کی جانب سے کہ معاملات صحیح ہو سکیں, وہ معاملات صحیح ہوئے نہیں اور وہ جنگ تک پہنچ گئے. میں بات کر رہی ہوں رشیا اور یوکرین جنگ کی. ناظرین, اسی جنگ کے تناظر میں یورپی یونین نے اب روس پر نئی پابندیاں عائد کر دی ہیں. رکن ممالک کی جانب سے پابندیوں کا یہ 11واں پیکج ہے جس کی منظوری دی گئی ہے. روس کو ٹیکنالوجی سے متعلق ایسی اشیاء برآمد کرنے پر پابندی ہوگی جو ماسکو کے فوجی سیکٹر کے لیے مددگار ثابت ہو سکتی ہیں. روسی حکومت کے زیر کنٹرول 5 براڈ کاسٹنگ اداروں کے لائسنس بھی منسوخ کر دیے گئے ہیں. یوکرینی بچوں کو روس ڈپورٹ کرنے کے الزام میں 71 افراد اور 33 اداروں کے اثاثے منجمد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. یورپی کمیشن کی سربراہ نے یورپی یونین کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے اور کہا یہ ہے کہ اب تک کی سب سے زیادہ دور رس نتائج کی حامل پابندیاں ہوں گی اور اس کے نتیجے میں روس کے جنگی ہتھیاروں میں کمی اور اس کی معیشت کو نقصان پہنچے گا, کیونکہ یوکرین کے مستقبل سے ہی یورپی یونین کا مستقبل وابستہ ہے. ناظرین, خبر رساں ایجنسی کے مطابق نئی پابندیوں کا اطلاق اور اس سے قبل اس بات پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے کہ روس کے پڑوسی ممالک آرمینیا ہے, قازقستان ہے, کرغزستان ہے, متحدہ عرب امارات ہے, ترکیہ ہے اور چین ہے, وہاں یورپی یونین کی اشیاء کی مانگ بڑھ رہی ہے. دوسری جانب یوکرینی صدر زیلنسکی نے الزام عائد کیا ہے کہ انٹیلیجنس رپورٹ کے مطابق روس جوہری پلانٹ پر دہشت گردی کی کارروائی پر غور کر رہا ہے. تاہم کرملن نے ان الزامات کی تردید کر دی ہے. لیکن ناظرین, کیا یہ نئی پابندیاں روس کے لیے خطرناک ثابت ہوں گی اور کیا روس بھی مغرب پر اس طرح کا جوابی وار کر سکتا ہے؟ کیا آپشنز ہیں رشیا کے پاس اس وقت ان پابندیوں کے جواب میں؟ یہ ساری چیزیں اس رپورٹ میں. یورپی یونین میں شامل رکن ممالک نے یوکرین جنگ کے معاملے پر روس کے خلاف نئی پابندیوں کے 11ویں پیکج کی منظوری دے دی. بطور صدر یورپی یونین سویڈن کی جانب سے نئی پابندیوں کا اعلان کیا گیا, جس کے تحت ٹیکنالوجی کے شعبے سے تعلق رکھنے والی ایسی اشیاء کو بھی فہرست میں شامل کیا گیا ہے جو ممکنہ طور پر روس کے فوجی سیکٹر کے لیے مددگار ثابت ہو سکتی ہیں. نئی پابندیوں کے تحت روسی حکومت کے زیر کنٹرول 5 براڈ کاسٹنگ اداروں کے لائسنس منسوخ کر دیے گئے ہیں. مبینہ طور پر یوکرینی بچوں کو غیر قانونی طور پر روس ڈپورٹ کرنے کے الزام میں 71 افراد اور 33 اداروں کو بھی اثاثے منجمد کیے جانے کا سامنا کرنا پڑا. برطانوی خبر ایجنسی کے مطابق کسی تیسرے ملک کو ایسی حساس اشیاء کی فروخت پر پابندی عائد کی گئی ہے جو کہ دوہرے مقاصد کے لیے قابل استعمال ہو سکتی ہیں. خبر ایجنسی کے مطابق یورپی یونین کے اجلاس میں ایسے مشتبہ ممالک کی فہرست بھی تیار کی گئی جن کو حساس اور دوہرے استعمال کی اشیاء فروخت کرنے پر پابندی عائد کی جائے گی. یورپی یونین کی جانب سے طویل عرصے سے روس کے پڑوسی ممالک آرمینیا, قازقستان, کرغزستان, متحدہ عرب امارات, ترکیہ اور چین کی جانب سے یورپی یونین کی اشیاء کی مانگ بڑھنے پر تشویش کا اظہار کیا جا رہا تھا. یورپی کمیشن کی سربراہ ارسلا وون نے یورپی یونین کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ یہ اب تک کی سب سے زیادہ دور رس پابندیاں ہیں جس کے نتیجے میں روس کے جنگی ہتھیاروں میں کمی اور اس کی معیشت کو نقصان پہنچ رہا ہے. انہوں نے کہا کہ یوکرین کے مستقبل سے ہی یورپی یونین کا مستقبل وابستہ ہے. I believe the European Union has a special responsibility. And the reason is simple. We heard the President. Ukrainians tell us that when they imagine their future, they see Europe's flag flying over their cities. And I have no doubt that Ukraine will be part of our union. اس سے قبل نئی پابندیوں کی تیاری کے مرحلے پر ہنگری اور یونان کی جانب سے اپنی کمپنیوں پر جنگ میں مدد کا الزام عائد کیا گیا تھا, جبکہ ان ممالک کو یوکرین کی جانب سے عائد کی گئی پابندیوں پر شدید تحفظات تھے, جس کے بعد یوکرین نے فوری طور پر یونان کی 5 شپنگ کمپنیوں کو پابندی کی فہرست سے خارج کر دیا تھا.
हंगरी की ओटीपी बैंक ताहाल यूक्रेन की पाबंदियों की फहरिस्त पर बरकरार है। ताहम हंगरी की जानिब से नई पाबंदियों की हिमायत की गई है। यूरोपीय यूनियन की जानिब से लगाई गई नई पाबंदियों के ऐलान से कबल बरतानिया में रूसी सिफारत खाने की जानिब से चंद रोज पहले 11वीं पाबंदियों का पैकेज और पस मंजर के उन्वान से अमेरिकी सदर की एक वीडियो ट्वीट की गई थी। एक तरफ यूरोपीय यूनियन की पाबंदियां तो दूसरी जानिब रूस और यूक्रेन दोनों ममालिक ने कई महाजों पर एक दूसरे पर हमला करने का दावा किया है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने ऐलान किया है कि जब से यूक्रेन ने जवाबी हमलों का आगाज किया है उससे लेकर अब तक यूक्रेन को 245 टैंक्स और 678 बख्तर गाड़ियों की तबाही का नुकसान उठाना पड़ा। उन्होंने ऐलान किया कि दुश्मन को नुकसान पहुंचाने के लिए जल्द बैनुल बराज़मी सारमात मिसाइल भी रूसी अफवाज को फराहम कर दिए जाएंगे। दूसरी जानिब यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने इल्जाम आयद किया कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस जौहरी प्लांट पर दहशतगर्दी की कार्रवाइयों पर गौर कर रहा है। ताहम क्रेमलिन ने इन इल्जामात की तरदीद कर दी है। दूसरी जानिब अफ्रीकी रहनुमाओं के वफ्द दोनों जंग ज़दा ममालिक का दौरा किया, जिसके दौरान वफ्द ने 10 निकाती प्लान जारी किया जिसमें कैदियों और बच्चों को उनके आबाई ममालिक में वापस भेजना शामिल था। नाज़रीन, दुनिया यूनान कश्ती हादसे के सोग से अभी बाहर नहीं निकल पाई थी कि स्पेन के जजीरे कैनरी के समंदर में तारिकीन वतन की एक और कश्ती डूब गई जिसमें 60 से ज़ायद अफराद सवार थे, जिनमें से 24 अफराद को बचा लिया गया है। इस हादसे में बच्चे समेत 2 अफराद की लाशें मिली हैं, जबकि डूबने वाले अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। दूसरी जानिब बहरा रोम में यूनान के करीब कश्ती उलटने से लापता होने वाले 3 अफराद की लाशें मिल गई हैं और इसके बाद हलाकतों की तादाद बढ़कर 82 हो गई है। हुकाम की जानिब से किसी एक शख्स के भी जिंदा बचने की कोई उम्मीद जाहिर नहीं की जा रही है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक जो पाकिस्तानी कश्ती हादसे में महफूज रहे थे उनकी हर मुमकिन मदद की जा रही है, जबकि वज़ीर आज़म की तरफ से कायम की गई तहकीकाती कमेटी भी हक़ाइक़ जमा करने में मसरूफ़ है। सिर्फ यही नहीं, बहरे ओकियानूस में टाइटैनिक के मलबे की जानिब सफ़र के दौरान लापता होने वाली आबदोज़ का कोई सुराग नहीं मिल पा रहा। इमदादी टीमें ये खदशा जाहिर कर रही हैं कि टाइटन को लापता हुए जितना वक्त हो चुका है उस लिहाज से उसमें ऑक्सीजन की मकदार ख़त्म हो चुकी होगी। अगर फौरी तौर पर सुराग नहीं मिला तो उसमें सवार अफराद के ज़िंदा बचने की उम्मीद दम तोड़ सकती है। नाज़रीन, ये जो आबदोज़ है जिसकी मैं बात कर रही हूँ 18 जून की सफ़र पर रवाना हुई थी, मगर पौने 2 घंटे बाद ही इसका राबता मुनक़ता हो गया था। इस लापता आबदोज़ में पाकिस्तानी नैयाद बरतानवी शहजादा दाऊद, उनके 9 उम्र बेटे सलेमान दाऊद और मिशन स्पेशलिस्ट समेत 5 अफराद सवार थे। अमेरिका, कनाडा और फ्रांस की रेस्क्यू टीमों का कहना है कि आबदोज़ में मौजूद 5 अफराद को रेस्क्यू करने की कोशिशें जारी रखी जाएंगी। नाज़रीन, ये जो कश्तियाँ डूबने के वाक़यात हैं और ये जो गुमशुदा आबदोज़ के हवाले से हमारे पास अपडेट्स आ रही हैं, ये सारी चीज़ें आज हमने एक रिपोर्ट में सुनाई हैं, आपको दिखा रहे हैं। बहरा रूम के बाद स्पेन के कैनरी जजीरे पर तारकीन वतन की एक और कश्ती हादसे का शिकार हो गई। खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक कश्ती डूबने के वाक़े की इतला तारकीन वतन पर नजर रखने वाली 2 तंजीमों अलार्म फोन और वॉकिंग बॉर्डर्स ने दी, जिनके मुताबिक कश्ती पर 60 से ज्यादा अफराद सवार थे। स्पेन मेरी टाइम एजेंसी के मुताबिक मराकशी बहरिये ने बर वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए 24 अफराद को बचा लिया है। बच्चे समेत 2 अफराद की लाशें निकाल ली गईं, जबकि डूबने वालों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रवां साल 1 जनवरी से 15 जून के दरमियान 5,914 अफराद कैनबरी जज़ायर पहुंचे हैं। हस्पानवी हुकूमत के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2022 की इसी मुद्दत के मुकाबले में 31.5% कमी आई है। दूसरी जानिब यूनान कश्ती हादसा में लापता होने वाले अफराद का अब तक सुराग नहीं मिल सका और खदशा जाहिर किया जा रहा है कि किसी भी शख्स के जिंदा सलामत होने की उम्मीद नहीं। कश्ती हादसा से कबल इंसानी स्मगलिंग के इस अमल को क्यों नहीं रोका जा सका? बरतानवी नशियाती इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक यूनानी हुकाम ने अब तक 104 अफराद को जिंदा बचाने जबकि 84 अफराद की लाशें मिलने की तस्दीक की है। इस वाक़े पर यूनान के हुकाम पर ऐसे इल्जामात लगे हैं कि उन्होंने इमदादी कार्रवाई शुरू करने में ताख़ीर की और इस मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा भी तहकीकात का मुतालबा कर चुका है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक कश्ती हादसे के शिकार अफराद के अहले खाना से DNA नमूने हासिल कर लिए गए हैं और सरकारी सतह पर मिलने वाली मालूमात भी शेयर की जा रही हैं। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने यूनानी हम मनसब से बात की है, जिसमें लापता अफराद की तलाश, लाशों की शनाख्त और लवाहिकीन को इमदाद फराहम करने के इंतजामात पर
तबादला ख्याल किया गया। तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना है कि इस ज़िम्न में कोशिशें जारी रहेंगी। उधर अमरीकी और कैनेडियन हुकाम ने टाइटैनिक मलबे के करीब लापता आबदोज की तलाश का ऑपरेशन तेज कर दिया है। ये आबदोज 18 जून को लापता हुई थी। सर्च टीम ने गुज़िश्ता रोज कहा था कि समुद्र की तह में आवाजें सुनाई दे रही हैं जो मुमकिन तौर पर आबदोज की हो सकती हैं, ताहम ये पेशरफ्त इससे आगे न बढ़ सकी। दूसरी जानिब फ्रांसीसी खबर इदारे AFP के मुताबिक इम्कान है कि आबदोज में ऑक्सीजन की सप्लाई खत्म हो चुकी होगी, ताहम रेस्क्यू हुकाम कहते हैं कि आबदोज में मौजूद अफराद को रेस्क्यू करने की कोशिशें जारी रखी जाएंगी। टाइटन की रहनुमाई के लिए सतह समुंदर पर मौजूद जहाज के अमले में शामिल खातून ने आखिरी लम्हात पर अपनी सेल्फी ली थी, जिसके पस मंजर में टाइटन भी देखा जा सकता है। आबदोज टाइटन में इसके पायलट और CEO समेत 3 सयाह सवार हैं, जिनमें 2 पाकिस्तानी निजात बरतानवी बाप बेटा भी हैं। इस सियाहती मुहिम का फीकस किराया $2.5 लाख है। ओशन गेट एक्सपेडिशन नामी इदारा सियाहों को समुद्र की तह में टाइटैनिक के मलबे का नजारा करने के लिए ले जाता है। बरतानवी नशियाती इदारे ने रिपोर्ट में दावा किया है समुद्र की हजारों फीट गहराई में लापता होने वाली टाइटन आबदोज की मालकियत रखने वाली अमेरिकी कंपनी ओशन गेट के साबिक मुलाजिम ने 2018 में ही खबरदार किया था कि आबदोज को हिफाजती मसाइल का सामना है। ओशन गेट ने आबदोज की खामियों को दूर करने के बजाय इसकी निशानदही करने वाले मेरीन ऑपरेशंस के डायरेक्टर डेविड को ही मुलाजमत से बर्खास्त कर दिया था। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम में इतना ही। मंडे को दोबारा आपसे मुलाकात हो रही होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।